Hello students, yesterday in the last video we discussed about sentence. What do you mean by sentence and how many words are there which we use during the framing of a sentence. When we frame a sentence, which are the words which we use during that process of formation. And today we will discuss about each part of the speech, each part of the sentence in detail. So let's start. What is the first part of the speech? First part is noun. First part is noun. What do you mean by noun? According to definition, name of person, place, thing, state, action, stage, feeling is called noun. Is called noun. Name of person, place, thing, state, action, stage, feeling is called noun. यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग या एनी टाइप ऑफ स्टेट, एक्शन, स्टेज, फीलिंग, ये सब जो नेम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन होंगे. इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू मेक दिस डेफिनेशन short, then we can say, in other words, all naming words are noun. All the words which are used for a name can be said noun. It's okay. In the next, in other words, we can say also any name is a noun. Any name is a noun. कोई भी नाम है वो क्या है? Noun है. And in the next definition we can say the word that stands for a name. The word यानी वह शब्द that stands for, जो यूज होता है किसके लिए? नेम के लिए. यानी जो किसी नेम के लिए हम यूज करते हैं वो वर्ड्स क्या है? नाउन है. There are four definition of the sentence. First one, second, third, and the last one. But we will discuss now. We will discuss through the examples according to the first definition of the sentence. Name of person like Ram, Shah, Mohan. There are a lot of name of person which we use generally. And the next one is name of place like Jaipur, Delhi, India, America. Many names are there of the places also. Next one is things like book, pen, light, bike. Many names are there of things. And the next one is state. It is state like you are student, I am a teacher, doctor, professor, educator, etc. These are the state of a person according to profession. Next one is action. Action like playing. Playing is a action. Walking. Walking is also an action. Next one is stage. Stage like childhood, bachpan, adolescence, kishoravastha. These are the stages of life. Next one is feeling. I would like to tell you one more thing. Feeling can be said state of mind also. हम कह सकते हैं state of mind as well as feelings. For example, happiness is also state of mind. Happiness also a type of feeling of our mind. And sadness, nervousness, these are the example of feelings or state of mind. Okay, now we have cleared about noun. What do we mean by noun? अभी क्लियर हो गया है कि नाउन क्या है. any type of name of person, place, thing, state, action, stage, feelings is called noun. All naming words are noun. Any name is a noun. The word that stands for a noun, for a name, that is a noun. यानी कि ये चार डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे वो आपको अच्छे से क्लियर you need to remember that, but you need to understood the first definition very well. फर्स्ट डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरीथिंग इज नाउन विच वी सी. जो कुछ हम देखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, दैट इज ए नाउन. सब कुछ जो हमारे साथ होता है वो क्या है? नाउन है. नाउ इट्स टाइम ऑफ काइंड्स ऑफ ए नाउन. Kinds of noun. There are mainly 5 kinds are there of a noun. First one is proper noun. What is first? First one is proper noun. In this noun we will include particular or specific name. Particular or specific
नेम, स्पेशल नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, आपके जैसे विशेष व्यक्ति विशेष के जो नेम होते हैं, पर्सनल जो नेम, जैसे राहुल, उसके आगे आपका सरनेम भी आ जाएगा। द नेम विच आर यू नो नॉट यूज फॉर कैटेगरी, जो कैटेगरी को शो ना करे, जो आपकी स्पेशलिटी करे, शो करे। एनी पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम जो आपके लिए यूज किया जैसे जैसे राहुल, राम, रोहन, सोहन, जो भी है, जो आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज करते हैं, दो आर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम, like India, America, these are specific name. Next one is common noun. Next one is common noun, common name like boy, girl, these are very common name used for many every person, every boy or every girl. These names of category, डॉक्टर, दे आर नो सिंगल डॉक्टर, कोई सिंगल डॉक्टर नहीं है, बहुत से डॉक्टर्स हैं, टीचर्स बहुत से टीचर्स हैं, बॉय बहुत से बॉय हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है, स्पेशल नहीं है किसी के लिए। दीज आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस कैटेगरी, जो कैटेगरी को शो करेंगे वो हमारे कॉमन नेम होते हैं। और कॉमन नेम किसमें इंक्लूड करेंगे? कॉमन नाउन के अंदर। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस कलेक्शन ऑफ समथिंग, ऐसा वर्ड जो कलेक्शन शो करेगा, जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्सन, बॉयज, हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड हो गया, या ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्लास हो गया, क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। सेम लाइक आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, पुलिस, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, वी कैन से। कलेक्टिव में आएगा कलेक्शन ऑफ समथिंग, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कलेक्शन शो करेंगे, जिनमें ग्रुप शो होगा, वो वर्ड सारे आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, द थिंग विच आर यूज्ड टू मेक न्यू थिंग, न्यू वन। Material noun, the thing which are used to make new one, ऐसी थिंग्स जिसको हम क्या है, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक वाटर, मिल्क, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब चीज़ें क्या है, हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ नया बनाना होता है। जैसे हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो हम कंक्रीट, रोड़ा पत्थर वगैरह हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट। अब कंक्रीट अलग से नाउन भी है, यू कैन फाइंड इन सम बुक्स कंक्रीट नाउन इज देयर, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज कंक्रीट वी नो अबाउट इट। रोड़ा पत्थर जो होता है उसको कंक्रीट बोलते हैं, जैसे सॉलिड थिंग वी कैन से, और उसको ही नाम दे दिया कंक्रीट नाउन। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से नहीं, मैंने एग्जाम्पल में ही डाल दिया, किसके? मटेरियल में ही इसको डाल दिया। कंक्रीट, रोड़ा पत्थर भी क्या आएगा, मटेरियल में ही मैंने इसमें एडिड कर दिया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा, लाइक हैप्पीनेस, खुशी, दुख, जो भी है, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशंस जो होते हैं। स्पेशलिटी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी एक अलग सी विशेषता क्या है कि नीदर कैन बी सीन नॉट टच्ड, ना तो इसको हम देख सकते हैं, ये देखी नहीं जा सकती है, ना ही छुई जा सकती है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पीनेस एग्जिस्ट, अभी हैप्पीनेस एग्जिस्ट कर रहा है, मैं खुश हूँ, आप खुशी देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है, मैं खुश तो हूँ, खुशी तो है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें क्या है, एग्जिस्ट करती हैं। दीज नाउन्स एग्जिस्ट, बट इसको हम ना तो देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको ना तो हम सी कर पाएँ, देख पाएँ, ना ही छू पाएँ। नीदर कैन बी सीन नॉट टच्ड, ये ना देखी जा सकती है ना छुई जा सकती है, बट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जिस्ट करती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आएंगी जो स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो फीलिंग्स, इमोशन जो हैं, और कुछ इमेजिनरी वर्ड्स, लाइक हम इमेजिनरी नाउन एक अलग से और दिया जाता है कई बार बुक्स में, इमेजिनरी नाउन, इमेजिन वर्ड, जैसे गॉड, हेल, हेवन, स्वर्ग, नर्क, ये सब क्या है, मानते हैं कि दीज आर द इमेजिन्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। लेकिन ये वर्ड्स हम किस में डाल देंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट में ही डाल देंगे। वैसे तो इमेजिनरी नाउन अलग से कॉलम दिया हुआ, मैं पहले आपको बता रहा हूँ 2 कॉलम, जैसे कंक्रीट में रोड़ा पत्थर आता है, ठोस सॉलिड थिंग्स आती हैं, मैंने इसको डाल दिया मटेरियल में, क्योंकि आप समझ गए कंक्रीट मीन वी ऑल नो अबाउट इट। और लास्ट वन इज इमेजिनरी नाउन, इमेजिनेशन को क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, वो भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिया, अलग से नाम नहीं दिया इमेजिनरी नाउन। तो आप समझ लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे इमेजिनरी नाउन के वर्ड जैसे गॉड, हेवन, हेल, ये सब इसके अंदर एडेड हो जाएंगे। सो दिस आर द काइंड्स ऑफ नाउन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम या स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, किसी के भी हो। कॉमन नेम, जैसे कैटेगरी के नेम होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, जो कैटेगरी पूरी आ जाएगी इसमें। कलेक्टिव, जिसमें कलेक्शन शो होगा, यानी ग्रुप शो होगा, कलेक्शन का मतलब ग्रुप शो होगा, जैसे आर्मी, पुलिस, किसी भी का भी, जैसे क्लास भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मटेरियल,
वो चीज़ें जो कुछ नई चीज़ बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कंक्रीट, ब्रिक्स, सीमेंट, मिल्क, वाटर, ये सब आएगा। एंड द लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट, ये स्टेट ऑफ माइंड, आइडिया, इमोशन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो वर्ड्स डालेंगे जिन चीज़ों को ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे रूटीन लाइफ में। ओके, थैंक यू ऑल। और व्हाट इज योर होमवर्क? you need to maintain this homework, this work which I अभी आपको मैंने जो पढ़ाया है अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे इन फेयर नोटबुक और अच्छे से लर्न करेंगे। यू नीड टू लर्न एज वेल एज राइटिंग, एंड आई विल ask you these all things when you will appear in the school, or I hope we all will appear in the school very soon. Thank you, have a nice day.